Student, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining student, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Okay, in previous class we have to study about the frequency modulation and the difference between the frequency modulation and phase modulation. Afterward, we have to study about the various parameter of frequency modulation, like as a deviation, carrier swing, modulation index. Okay, and afterward just discuss the example related to the angle modulated signal, which is provided the determine the maximum phase deviation and the frequency deviation. Okay, afterward we have to study already the FM generator. By using the Bessel's function, expand the particular expression of the frequency modulation, and we have to study that it is having the large number of side bands given in such equation. First one, frequency component omega c. In second component there are second term there is the two frequency component omega c plus omega m, omega c minus omega m. तीसरी वाली टर्म में देखें तो उसमें क्या आएगा, there are the three two frequency component omega c plus 2 omega m and omega c minus 2 omega m. So ultimately concluded that the FM has a large number of side band, जैसे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तीसरी टर्म में ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस 2 एम. So that means it is concluded that it is having the large number of side bands. Like this, and large number of side bands. जैसे first one frequency component omega c के respective है. First one frequency component is related to the omega c. Second one is related to omega c plus minus omega m. Third one is the omega c plus minus 2 omega m. Fourth one omega c plus minus 3 omega m. Okay, so that is the representation of the frequency modulation. And today we will discuss about the difference between AM and FM. Difference between AM and FM. Okay, अब जैसे एक एक पॉइंट अपन इसका डिस्कशन करें. In case of frequency modulation, bandwidth is equal to 2 into del plus FM, where del is the frequency deviation. ठीक है, जबकि AM के केस में बैंडविड्थ कितनी आती थी. AM के केस में अपन बैंडविड्थ देखा है, AM के केस में अपन बैंडविड्थ को एनालिसिस करें तो AM के केस में बैंडविड्थ कितनी आएगी, 2 into FM. AM वाला केस अपन कंसिडर करें तो AM के केस में bandwidth will be the bandwidth is equals to 2 FM. ठीक है, but in case of FM bandwidth is the 2 into del plus FM. एक डेल वाली एक्स्ट्रा टर्म है इसमें, और डेल एक्चुअली क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डेविएशन एक्चुअली किसमें रहेगा, मेगाहर्ट्ज में. तो अल्टीमेटली बैंडविड्थ किसमें होगी इसकी, मेगाहर्ट्ज में. तो इसकी बैंडविड्थ तो एक्चुअली एएम वाली बैंडविड्थ, जैसे एएम की जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी वो किलोहर्ट्ज में रहेगी, तो बैंडविड्थ तो किसमें आएगी इसकी, किलोहर्ट्ज रेंज में. बैंडविड्थ इसकी किसमें आएगी, किलोहर्ट्ज रेंज में. किलोहर्ट्ज रेंज में.
ठीक है। बट इन केस ऑफ FM बैंडविड्थ विल बी इन मेगाहर्ट्ज। अब ये कैसे हुआ मेगाहर्ट्ज में, कैसे अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं कि दैट विल बी द इन मेगाहर्ट्ज 10⁻⁶। ये किलोहर्ट्ज है 10⁻3, मेगाहर्ट्ज है 10⁻6। तो मेगाहर्ट्ज क्या होगा, क्योंकि FM तो किलोहर्ट्ज में है, इसमें दो टर्म है डेल प्लस FM। FM किस में है, वही सेम किलोहर्ट्ज में है, पर डेविएशन किस में रहेगा, मेगाहर्ट्ज में। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था लास्ट क्लास में, ये वाला एग्जांपल बताया था ना मैं तुम्हें क्लास में, कि अगर अपन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें तो FC जैसे 20 किलोहर्ट्ज का है, FC 20 किलोहर्ट्ज का है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में इट विल बी इंक्रीजेस अप टू 25 मेगाहर्ट्ज, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में इट विल बी रिड्यूसेस अप टू 15 मेगाहर्ट्ज। तो अल्टीमेटली डेविएशन किस में आ गया, कितने में, 5 मेगाहर्ट्ज में। तो डेविएशन एक्चुअली किस में आएगा, मेगाहर्ट्ज में। डेविएशन किस में रहेगा, मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। और FM किस में है, किलोहर्ट्ज में। तो ये तो किलोहर्ट्ज में रहा और ये मेगाहर्ट्ज में। तो ये प्रूफ हो गया कि इन केस ऑफ FM bandwidth is much higher as compared to AM. The first one difference between the AM and FM with respect to bandwidth is that in case of AM bandwidth in kilohertz, because bandwidth is equal to twice of F of M, and FM is the फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी किस में रहेगी, ऑडियो रेंज में। ऑडियो रेंज क्या है, 20 to 20 किलोहर्ट्ज। बट इन केस ऑफ FM बैंडविड्थ इज द 2 into डेल प्लस FM। FM तो किलोहर्ट्ज में है, पर डेल किस में है, मेगाहर्ट्ज में। तो अल्टीमेटली बैंडविड्थ किस में आ गई, मेगाहर्ट्ज में। तो इन केस ऑफ FM बैंडविड्थ इज मच हायर एज कंपेयर टू AM। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हुआ। अब दूसरा देखें, अपन दूसरा डिफरेंस की स्टडी करें। Unlike AM, FM has infinite number of sidebands, so ideally bandwidth required for FM is infinite. मैं infinite केस में, जैसे अपन प्रीवियस क्लास में देख रहे थे ना, ये जनरेशन वाले FM का जो जनरेशन है, तो इसमें कितने लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट बैंड है ना। पहला बैंड आया ओमेगा सी पे, दूसरा आया ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे, तीसरा है ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम पे, फिर आया ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम पे, फिर ओमेगा सी प्लस 4 एम पे। तो अल्टीमेट आइडियल केस अगर अपन कंसीडर करें तो आइडियल केस में कितने हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड है तो बैंडविड्थ कितनी हो गई, इनफाइनाइट, ठीक है ना। जितने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ बैंड होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, बैंडविड्थ होगी। तो FM को आइडियली अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड है तो बैंडविड्थ भी कितनी होगी, आइडियल केस में इनफाइनाइट। But in case of AM bandwidth is always finite, है ना। AM के केस में बैंडविड्थ कितनी आएगी, 2 into FM। उस केस में क्या वो फाइनाइट रहेगी। पर FM के केस में आइडियल केस कंसीडर करें तो बैंडविड्थ कितनी होगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दैट मींस मच हायर एज कंपेयर टू AM। थर्ड डिफरेंस देखें, द JN of MF, वही बेसेल फंक्शन से अपन उसके कोफिशिएंट डिटरमाइन करें, इवेंचुअली डिक्रीजेज एज इंक्रीजेज। ये ऑलरेडी अपन देख ही चुके हैं कि जैसे जैसे अपन बैंड बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ जैसे 10 वोल्ट था, यहाँ 5 वोल्ट हो गया, यहाँ 3 वोल्ट हो गया, यहाँ 2 वोल्ट हो गया, फिर 1 वोल्ट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पे कही है इसने कि जैसे JNF इवेंचुअली डिक्रीजेज एज N इंक्रीजेज। जैसे लार्ज नंबर ऑफ बैंड अपन बढ़ाते हैं, जैसे पहला बैंड है, ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो जैसे अपन आगे N नंबर ऑफ बैंड कंसीडर करते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैग्नीट्यूड या JNF की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। Next है the modulation index in FM basically determine the how many sidebands are present. मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक्चुअली क्या है, ये वाली चीज। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहाँ है, यहाँ पे ये वाला टर्म, और मॉड्यूलेशन M of M। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ साइड बैंड्स पे। नंबर ऑफ साइड बैंड, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ साइड बैंड। तो नंबर ऑफ साइड बैंड FM में क्या है, इसकी स्पेशलिटी यही है, FM में
इट इज हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड। जितने ज्यादा साइड बैंड है उतने ज्यादा इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखें इन ए, जबकि एएम के केस में कितने साइड बैंड होंगे? केवल दो, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। बट इन केस ऑफ एफएम में लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एएम एंड एफएम। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस अपन ने बैंडविड्थ के रेस्पेक्टिव देखा, दूसरा डिफरेंस अपन ने इसके मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्टिव देखा, तीसरा डिफरेंस अपन इसके साइड बैंड के रेस्पेक्टिव देख रहे हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड बैंड्स आर प्रेजेंट? एएम के केस में दो साइड बैंड, एफएम के केस में लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड्स। ओके, अब नेक्स्ट देखें इन एएम हैज एम इंक्रीजेस साइडबैंड पावर आल्सो इंक्रीजेस, हेंस टोटल पावर इंक्रीजेस एज इन केस ऑफ। अब इसमें अपन देखें कि जब अपन एक फॉर्मूला अपन ने स्टडी करा था एएम को, एएम वाला केस देखें अपन, एएम वाले केस में एक फॉर्मूला अपन ने स्टडी करा था PT इक्वल टू PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। PT इक्वल टू PC टोटल पावर इक्वल टू PT इक्वल टू PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। अब इसमें जैसे अपन मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करें, मॉड्यूलेशन वैल्यू की एम की वैल्यू इंक्रीज करें तो टोटल पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन इंक्रीज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? टोटल पावर क्या होगी? इंक्रीज। बट इन केस ऑफ एफएम total power is always constant, total power is always constant। अब ये कैसे आया? जैसे अपन ने एक फॉर्मूला देखा था एफएम के केस में, फर्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने, तो एफएम के केस में ये जो बेसिक फॉर्मूला ये वाला था, यहाँ देखो इधर, ये ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी के एफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एम ऑफ टी डी टी। जैसे ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, phi fm equals to a cos of omega ct plus kf minus infinite to plus infinite m of t dt। ठीक है, अब इसको जैसे ऑब्जर्व करें अपन कि फर्स्ट वाली जो टर्म है, जैसे a एक्चुअली क्या है? यहाँ पे a है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, है ना। a इज इक्वल्स टू a एक्चुअली क्या है? इज vc। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ठीक है, ओमेगा सी टी क्या है? ओमेगा सी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। के एफ क्या है? कांस्टेंट फॉर एफएम। एम ऑफ टी क्या है? यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब मुझे तुम ये बताओ कि जैसे कोई सिग्नल लिया मैंने 10 cos ऑफ 10 ओमेगा टी, और इसकी अगर अपन पावर कैलकुलेट करें तो जैसे अपन ने एएम में देखा था पावर अपन कैसे कैलकुलेट करते थे, इसकी पावर निकालें तो कैसे आएगी? 10 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या आती थी? 1/2। तो ये वैल्यू क्या आई एक्चुअली? ये वाली वैल्यू क्या आएगी? 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये अपन एएम में देखा था, एएम में जब अपन पीटी और पीसी कैलकुलेट कर रहे थे। अब मुझे बताओ कि इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं एफएम सिग्नल की पावर कैलकुलेट करूं तो कितनी आएगी? ये ए तो अलग हो गया, इसमें दो टर्म है, जैसे एक तो है ए वाली टर्म, एक तो ये वाली टर्म, एक तो ये वाली टर्म है जो मैग्नीट्यूड है, और दूसरी वाली टर्म ये कॉस वाली टर्म है। तो ए का तो क्या हो गया? स्क्वायर। पावर कैलकुलेट करें तो ए का तो हो गया स्क्वायर, और कॉस का अपन जो इंटरनल जो टर्म है चाहे कुछ भी हो, कॉस की डिपेंडिंग टर्म का अपन एवरेज वैल्यू निकालें तो क्या आ गया? 1/2। तो ये एक्चुअली क्या आ गया? a² बाई 2।
अगर अपन इसमें ए एक्चुअली क्या है, वीसी मैग्नीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, इसको कांस्टेंट कर दें तो पावर क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर इसमें ए अगर कांस्टेंट है, जैसे 10 cos ऑफ है, तो 10 का क्या हो गया 100 डिवाइड बाय 2, तो 50 कांस्टेंट हो गया। तो ए तो एक्चुअली कांस्टेंट है, बट ये एफएम के केस में, एफएम के केस में पावर एक्चुअली क्या आएगी, ए स्क्वायर बाय 2 और वीसी स्क्वायर बाय 2। और अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वीसी स्क्वायर बाय 2, ये कांस्टेंट है एफएम के केस में। पीटी दैट इज द पीटी फॉर एफएम। एएम के केस में देखें तो पीटी एक्चुअली क्या आता था, पीटी इक्वल्स टू पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, एएम के केस में है ना, ये एएम के केस में। तो इसमें तो ये कांस्टेंट है पीटी, क्योंकि वीसी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो पीटी कांस्टेंट हो गया। बट एएम के केस में क्या है, एम वेरिएबल है। जैसे एम कितना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 20% भी हो सकता है, 40% भी होगा, 60% भी होगा। तो एम वेरिएबल है तो पीटी भी वेरिएबल है। तो इन डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि इन केस ऑफ एएम total power is increases or variable as according to the modulation index, but in case of FM total power is always constant, that is equals to VC square by 2। समझ में आई बात। तो इसकी अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला कि FM के केस में पावर क्या हो गई, कांस्टेंट है, और एएम के केस में पावर क्या है, वेरिएबल है, और किस पर डिपेंड करती है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर। एक तो ये पार्ट हो। दूसरा ऑब्जर्व अपन क्या करते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड अपन ने कैरियर का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करा तो उस केस में टोटल पावर इंक्रीज हो सकती है एफएम में कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर एएम में अगर अपन पीसी और एम दोनों को इंक्रीज करें तो टोटल पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या निकला इसमें, कंक्लूजन क्या निकला कि एफएम के केस में पावर क्या है, कांस्टेंट है, और पावर क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी एज कंपेयर टू एएम। एएम के केस में पावर वेरिएबल है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड, और पावर भी ज्यादा है एज कंपेयर टू एफएम। सो अगर इसको अपन इस तरह समझें कि जैसे एएम है, जैसे विविध भारती है या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग है, तो वो अपन गांव वाले विलेज एरिया में भी अपन सुन सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में भी। पर जबकि एफएम है तो वो लिमिटेड ही रेंज रहेगा। जैसे जयपुर का एफएम है तो वो अपन केवल दूदू या अजमेर तक सुन सकते हैं, भीलवाड़ा नहीं सुन सकते उसको, ठीक है। तो उसकी रेंज लिमिट होगी क्योंकि पावर कांस्टेंट है, पावर मिनिमम है। एएम के केस में क्या, पावर वेरिएबल है और डिपेंड किस पे कर रही है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इंक्रीज कर दो, पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो एएम को अपन विविध भारती, नेशनल, उसको अपन गांव तक भी सुन सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक सुन सकते हैं। पर एफएम के केस में पावर कांस्टेंट है, कम है, इसलिए अपन इसको लिमिटेड रेंज तक ही एफएम को सुन सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया है एएम और एफएम में, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि एएम के केस में पावर ये रहेगी, एफएम और एफएम के केस में पावर ए स्क्वायर बाई 2 कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इन एएम ओनली साइडबैंड पावर इज यूजफुल, बट एफएम टोटल ट्रांसमिटेड पावर। जैसे एएम के केस में साइडबैंड पावर ही यूजफुल रहेगी, पर एफएम के केस में क्या रहेगा, टोटल ट्रांसमिटेड पावर यूजफुल, ठीक है। इन एफएम इट इज पॉसिबल टू कैरियर कंपोनेंट टू डिसिपर कंप्लीटली फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देयर these values are known as the eigen value। मतलब आइगन वैल्यूज पे ये टोटली डिसअपियर हो सकता है, completely disappear in case of FM, but AM is not possible। और दूसरा लास्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि देयर इज द नो वेरिएशन इन केस ऑफ FM, देयर इज नो वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड, so it is provided the much more noise immunity। मतलब एफएम के केस में नॉइज इम्यूनिटी क्या रहेगी, हायर रहेगी एज कंपेयर टू एएम, क्योंकि एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या कांस्टेंट है, वेरिएशन किस में है, फ्रीक्वेंसी में। एफएम के बेस ही यहाँ से हुआ है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। एएम का बेस क्या है, एम्पलीट्यूड को वेरी करना है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना है। तो एफएम में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, नॉन वेरिएबल है,
दैट मीन्स के उसकी नॉइज इम्यूनिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। मच मोर नॉइज इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द FM एज कंपेयर टू AM। अगर एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस वेरी होता रहे, कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा तो नॉइज उसमें इंट्रोड्यूस होगी, नॉइज इंट्रोड्यूस होगी तो ज्यादा उसमें नॉइज इंट्रोड्यूस हो तो सिग्नल का लॉस्ट इंक्रीज होगा। सो AM इज नॉट मच मोर इम्यून एज कंपेयर टू FM। FM में नॉइज, अब मच मोर नॉइज इम्यूनिटी है तभी अपन देखते हैं FM कितना क्लियर कट सुनाई देता है अपने को बिना डिस्टर्बेंस के। रेंज कम है पर क्वालिटी अच्छी है, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड मच मोर नॉइज इम्यूनिटी, नॉइज को मैक्सिमम रिमूव करेगा, बैंडविड्थ भी ज्यादा है। जबकि AM के केस में देखें गांव में अगर अपन सुनते हैं तो कितना डिस्टर्बेंस आता रहता है उसमें। So that is the difference between AM and FM. FM is provided the much more noise immunity as compared to AM. तो ये अपन ने आज डिफरेंस पढ़ा दोनों के बीच में, AM और FM में। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे जनरेशन, AM का जनरेशन और डिमॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ओके, अर्पित, प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। संतोष, प्रेजेंट सर। ओके, और कोई डाउट या कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो अभी। चलो ठीक है, मैंने FM के नोट्स आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं। आज वाला लेक्चर है ये मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहां जाके आप इसको देखो, पढ़ो, और कोई इशू आता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करो। ओके, थैंक यू।